Welcome back. I am Nagesh Patil. As you know, I am providing some training on the pharmaceutical industry. Last session was on the cleaning validation. In continuation, we will see as a part two in the cleaning validation with a specific example and for the dirty hold equipments and clean hold equipment related details we will see in this session. So we will begin as a session. As you know, the cleaning validation of the dirty hold time study, we will consider an example of paracetamol and metformin are two product. Scenario in this case, what is with the equipment used for the production of the paracetamol, analysis antipyretic drug, and is to be cleaned. जो before switching to metformin an एंटी डायबिटिक ड्रग दो ये दो प्रोडक्ट का सब्सिक्वेंटली जब प्रोडक्शन होगा तो उस वक्त का क्लीनिंग का जो डर्टी होल्ड इक्विपमेंट रिलेटेड जो स्टडी है हम उसमें कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। The critical goal is to ensure that any residue of paracetamol and microbial contamination are removed, uh, do not affect the safety of the paracetamol metformin tablets. So the maximum allowable time for the equipment जो कि uncleaned हमने रखा है to prevent the microbial contamination or hardness of residue that could affect the cleaning process. तो हमको worst case scenario selection करके paracetamol is a low risk compound in terms of toxicity but needs control for any potential residue. क्योंकि metformin requires a high degree of assurance that no carryover occurs as across the contains will alter the therapeutic efficacy. तो हमने as a study equipment used for the paracetamol जो लेफ्ट अनक्लीन जो कि हमने रखा उसको क्लीन न करते हुए ऐसे रख दिया तो evaluate and assess the impact of residue and microbial contamination level वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जो टाइम इंटरवल हमने कंसिडर किया है वो हम 1, 6, 12, 24 एंड 48 आवर्स का किया है। इसके ईच टाइम पॉइंट पे हम क्या करेंगे इक्विपमेंट सरफेस टेकन स्वैप सैंपल्स फ्रॉम द इक्विपमेंट सरफेस जो हम ले लेंगे बोथ केमिकल और माइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए। जैसे कि हम इक्विपमेंट्स मिक्सर्स है, रिएक्टर्स है, फिलिंग इक्विपमेंट्स है, कन्वेयर्स है, तो ये अलग अलग हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो जो सैंपल्स हम लेंगे उसमें जॉइंट्स रहेगा, गैस्केट्स रहेगा, डेड लेग्स जैसे सर्वाइकल जो क्या बोलते हैं कर्वेचर एरिया जो है ना वहाँ पे कैसे टेस्टिंग मेथड जो पैरासीटामोल रेसिड्यू के लिए HPLC मेथड्स हमने सिलेक्ट करके रखा है और माइक्रोबियल एनालिसिस स्वैब के लिए टोटल एरोबिक काउंट एंड टोटल ईस्ट एंड मॉल्ट काउंट। other than that the objectionable organisms like E. coli और salmonella Staphylococcus aureus इस तरह की जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वो absent हो। तो acceptance criteria क्या रहेगा maximum allowable carryover is calculated based on the safety. If the daily exposure of PDA for paracetamol is permitted daily exposure 100 milligram and worst case batch size of metformin is 100 kg, then the acceptance criteria parameters would be calculated ensuring the level of the risk जो कितना आएगा। तो सेफ्टी फैक्टर जो रेसिड्यू पैरासिटामोल के लिए है यू मस्ट नॉट एक्सीड द 10 ppm। ये हमने एक बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है या फिर जो स्ट्रिंजेंट डिटेल्स है उसके बेसिस पे हमने किया। जो टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट के लिए 100 CFP पर स्वैप और टोटल ईस्ट एंड मोल्ड काउंट 100 CFP पर स्वैप। ये उसमें हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजेंस लाइक सैल्मोनेला, स्यूडोमोनास, ऑरिजिन्स
should be absent from the samples हमने जहाँ से लिया है उसमें, और पूरा इक्विपमेंट तो डर्टी होल्ड हमने रखा है to ensure that कि इसमें ये नहीं होगा. Based on result of the dirty hold study, if the microbial result are within limit up to 24 hours but failed at 48 hours, बाकी जो रेसिड्यू है वो हो सकता है कि विद इन लिमिट आ जाए, लेकिन माइक्रोबियल काउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो हमको 24 आवर्स का हमको होल्ड टाइम स्टडी इस्टेब्लिश करके प्रोसीजर्स में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा. रेगुलेटरी कंप्लायंस पर्सपेक्टिव जो ICS Q7 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए उसमें क्या लिखा है कि क्लीनिंग प्रोसेस वैलिडेशन रिजल्ट्स आर जस्टिफाइड फॉर होल टाइम मस्ट बी मेंटेन फॉर द एडिट पर्पस, की एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट जो वन आफ्टर द अनदर्स आर मैन्युफैक्चर्ड उसके लिए होना जरूरी है. डर्टी होल्ड शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. ड्यूरिंग प्रोडक्शन शिफ्ट इंश्योर दैट एडहेरेंस टू द डिफाइंड होल्ड टाइम वो रखा है. तो ओवरऑल डर्टी होल्ड टाइम जो हमने डिटरमाइन किया है वो 24 आवर्स बेस्ड ऑन माइक्रोबियल रेसिड्यू है, और पैरासिटामोल का जो केमिकल जो रेसिड्यू है वो दैट शुड बी लेस देन 10 ppm PDA बेसिस पे परमिटेड डेली एक्सपोजर फॉर द मेटफॉर्मिन. Microbial limits, no significant microbial contamination detected within 24 hours. TAMC और TYMC का वो मीट हो रहा है. तो इस बेसिस पे हमने ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्लीन इक्विपमेंट कैन बी रिमेन. अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ना, अभी जैसे कि हमने अनक्लीन के बारे में समझा, सिमिलरली वी हैव टू स्टडी द क्लीन होल्ड टाइम फॉर द मैक्सिमम टाइम, कितना देर तक हम क्लीनिंग के बाद अगला बैच हमको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वेट कर सकते हैं. अगर इन बिटवीन टाइम अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए. सिमिलरली जैसे हमने डर्टी होल्ड टाइम के लिए जो टाइमलाइन डिसाइड किए थे कि सैम्पलिंग के लिए 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, सैंपल्स आर एनालाइज फॉर दी क्लीनिंग एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए हम इवेलुएट करेंगे. तो इसमें कि डिफिकल्ट टू क्लीन एरिया जैसे कि उसमें भी कंसिडर किए थे, गैस्केट्स है, वाल्व्स है, अलग अलग कर्वेचर एरियाज रहता है, उसमें रिएक्टर है, मिक्सर है, मशीन है, फिलिंग मशीन्स वगैरह इंजेक्टेबल में यूज होते हैं, तो उसको हम कंसिडर करेंगे. तो सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द माइक्रोबियल कंट दैट इज TAMC TYMC, E. coli should be absent, Salmonella should be absent, Pseudomonas, इस तरह के जो पैथोजेंस है तो इक्विपमेंट पे absent होना है. एंड माय स्टोरेज एनवायरनमेंट फॉर द क्लीन इक्विपमेंट शुड बी मॉनिटर्ड, जो कि जहाँ जिस एरिया में हमने इक्विपमेंट रखा है उसको हमको मॉनिटर करने का जरूरत है. क्लीन इक्विपमेंट शुड बी होल्ड फॉर द एंड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शुड बी मॉनिटर्ड, और जो एयर चेंजेस वगैरह रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो होना चाहिए. एक हम सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि पैरासिटामोल क्लीनिंग फॉलोड बाय मेटफॉर्मिन प्रोडक्शन, where the equipment is cleaned, producing the paracetamol, and need to stay idle for some time before the next batch of metformin. Step 4, cleaned hold study. तो इक्विपमेंट जो है ना हमने thoroughly क्लीन किया है पैरासिटामोल के मैन्युफैक्चरिंग बाद. Once the cleaning equipment is immediately used, instead it is held for the storage area. जैसे कि हमने सैंपल निकालने के लिए 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 और 78, 72 आवर्स और 96 आवर्स to determine the maximum safe clean hold time. तो ये एक हम स्टडी कंडक्ट करेंगे जो कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन में रखा है, ताकि टू प्रिवेंट एनी फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर. माइक्रोबियल सैम्पलिंग किया है, सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम क्रिटिकल इक्विपमेंट सरफेस एनालाइज फॉर द पैथोजेंस TAMC TYMC. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने पहले भी डिस्कस किया है, 100 CFU for the TAMC, 10 CFU for TYMC, or it should be pathogen should be absent from the
कंटेमिनेशन एक्सिट एक्सिट लिमिट एग्जांपल आफ्टर 72 आवर्स. एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हमने अलग अलग स्टडी में ऐसे दिख रहा है कि 72 आवर्स के बाद जो हमने सैंपल लिए थे उसमें ये कंटेमिनेशन जो है डज नॉट मैटर. तो 72 स्लाइटली माइक्रोबियल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड. तो क्लीन होल्ड टाइम बेस्ड ऑन दिस वैलिडिटी ऑफ क्लीन होल्ड टाइम इज सेट एज अ 48 आवर्स. तो 48 आवर्स तक हम ये इक्विपमेंट अगर होल्ड करते हैं तो उसमें हमको यूज कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग फॉर दी 48 आवर्स. तो importance of clean hold time period is a long idle period could allow environment microbial growth. ये एक possibility उसमें हमने identify किया. Know the cleaning hold time help streamline production schedule, जो कि हमको प्रोसेस एफिशिएंसी के लिए हमको ये जरूरी है कि अगर हम ये टाइम के बाहर अगर वापस बैच नहीं बनाते तो हमको वापस क्लीन करना पड़ता है, उसको ड्राई करने के लिए वेट करना पड़ेगा. तो उस तरह से अकॉर्डिंगली हमको वो क्लीनिंग का जो है शेड्यूल है, प्रोडक्शन शेड्यूल से वो हमको स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा. क्लीन ओल्ड टाइम स्टडी आर एसेंशियल एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस. ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एफडीए में. रिक्वायर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट इक्विपमेंट रिमेन्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. ये इसमें जरूरी है. फैक्टर अफेक्टिंग द क्लीन होल्ड टाइम. अभी कौन से फैक्टर है जैसे कि स्टोरेज कंडीशन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड कंडक्टिंग बोथ डर्टी एंड क्लीन होल्ड टाइम. इसमें क्या है? स्टोरेज कंडीशन, क्लीन शुड बी स्टोर्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. जैसे कि हमने बताया कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर नीड टू बी मेंटेन. टाइप ऑफ प्रोडक्ट, non-sterile product like paracetamol may allow for longer clean hold time compared to the sterile products. क्योंकि जो प्रोडक्ट स्टेराइल के लिए यूज हो रहे तो उसके लिए हमको ये इमीडिएटली क्लीन होना जरूरी है. वो किसी भी तरह का स्मॉल लेवल ऑफ कंटेमिनेशन और एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स. इक्विपमेंट मटेरियल, अगर मटेरियल सरफेस एरिया स्टेनलेस स्टील है तो माइक्रोबियल एडहेरेंस में भी सपोर्टेड लॉन्गर क्लीन होल्ड टाइम. इसके अलावा अगर जो क्लीन सरफेस, अगर गैस्केट, अगर रबर, कुछ अगर जो रिएक्टर में यूज होते हैं, वेसल्स में यूज होते हैं, तो वो केस में उनको उसका स्टडी करना अलग से, उसका टाइम, होल्ड टाइम जो है ना डिसाइड करने की जरूरत है. वो डर्टी एंड क्लीन होल्ड टाइम भी जो हमको करते हैं कैन ऑप्टिमाइज देयर क्लीनिंग शेड्यूल एंड इंश्योर द प्रोडक्ट सेफ्टी. हमको अप्रोप्रिएट क्लीनिंग शेड्यूल जो है वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा. क्लीनिंग वैलिडेशन जो कंपैरिजन हम अगर करते हैं एपीआई, टैबलेट्स, इंजन, the manufacturing equipment is clean to standard that prevent contamination जो है different product. Stringency and approach of clean validation can vary based on the type of the product. जो हम product manufacture कर रहे हैं उसके हिसाब से वो vary होता है. Cleaning validation जो API ingredients, tablets और injectable के बारे में अगर बात करते हैं, इन API जो removing residue of active ingredient, solvent, intermediates and potential degradants from the production equipment, जो कि it highly potency and reactive chemicals requires thorough cleaning and risk mitigation. API में कि प्योर API होने की वजह से और उसका जो रिस्क है API टू API वो बहुत ज़्यादा होता है. तो उस केस में हमको की कंसिडरेशन जो है इंक्लूडिंग अनरिएक्टेड APIs, इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स, सॉल्वेंट्स, समटाइम ये एप्लीकेबल हो, हमको रिमूव होना जरूरी है. इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी यूज, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, सेंट्रीफ्यूज है, रिएक्टर है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, ड्रायर्स है. क्लीन areas, risk contamination high due to the potency and toxicity of API across contamination could lead to the serious health risk. जो कि possibility है कि जिसकी वजह से ये contamination से toxicity of API अगर ज़्यादा है तो वो अगले प्रोडक्ट में उसका जो इम्पैक्ट है ज़्यादा आ सकता है. एनालिटिकल मेथड्स हमने देखा कि HPLC, GC जो API रेसिड्यू के लिए यूज किया जाता है. MACO is into account safety level, जो कि मैक्सिमम कैरी ओवर, अलाउएबल कैरी ओवर जो हमको कैलकुलेट करना है उसमें ये करेगा. तो हाइपोटेंट कंपाउंड्स लाइक पैरासिटामोल might require stringent cleaning validation. Trace amount must be below the permissible daily exposures. Microbial containers are less stringent for the
the नॉन स्टराइल प्रोडक्ट्स, और स्टराइल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, जैसे कि स्पेशली फॉर बायोटेक्नोलॉजी है या फिर इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट है, उसमें ये ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट होता है। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे तो उसमें जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एक्सिपेंट्स है, टिपिकली नॉन स्टराइल एनवायरनमेंट में क्लीनिंग validation tablet production is focusing on preventing cross contamination or removal of active ingredients and excipients from the equipment surface. रेसिड्यू जो है एपीआई का है, एक्सपेंट्स है, बाइंडर है, फिलर है, लुब्रिकेंट्स है जो यूज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो कर्नल कंप्रेशन में जनरेट होते हैं, तो वो सही तरीके से क्लीन हो सके। इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर ब्लेंडर, ग्रेनुलेशन, टैबलेट प्रेस, कोटर्स, जहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन होने का जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा रहता है, तो handling different active ingredients on the same equipment, cross contamination due to the incorrect dosing, तो वो हमको अवॉइड करने के लिए हमको क्लीनिंग वैलिडेशन जो है, डर्टी होल्ड टाइम साइड एंड क्लीन होल्ड टाइम जो हमने इवेल्यूट करना है और डिसाइड करना है कि what timeline is to be provided for the cleaned and uncleaned equipment. इंजेक्टेबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो है ना, बहुत ही सीरियसली रिव्यू किया जाता है, ताकि इंजेक्टेबल में जो स्टेरिलिटी फेलियर होने का जो चांस है अगले प्रोडक्ट में वगैरह, वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसलिए वो माइक्रोबियल रिलेटेड जो रिस्क है क्लीन अनक्लीन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहता है। एनालिटिकल मेथड्स जैसे एचपीएलसी वगैरह यूज करते, तो डिटरमाइन द आइडेंटिफाई द एक्टिव्स एंड इनएक्टिव्स। इसके अलावा लाल टेस्ट एक इंक्लूड किया जाता है, ताकि एंडोटॉक्सिन जो है सरफेस से सर्टेन लेवल के लिए तक वो रिमूव होना चाहिए। इंटरवल फॉर माइक्रोबियल एंडोटॉक्सिन्स लेवल आर नियर टू जीरो, जो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है। अभी हम अगर कंपैरिजन करते हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स, तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में एपीआई इंटरमीडिएट एंड सॉल्वेंट्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एपीआई एक्सिपेंट्स है, और जो डस्ट होने का जो पॉसिबिलिटी है ग्रैनुलेशन में, कंप्रेशन में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। इंजेक्टेबल में एपीआई एक्सिपेंट्स एंड एंडोटॉक्सिन, ये रेसिड्यूज टाइप जो नॉर्मली इवेल्यूट किया जाता है। इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं, रिएक्टर्स, सेंट्रीफ्यूज एंड फिल्टर्स फॉर द एपीआईज, ब्लेंडर, ग्रैनुलेशन, compression, coating, these are the equipment used in the mill. Sterile filling line and filtration system, autoclave, ये अलग अलग जो इंजेक्टेबल प्रोसेस के लिए रिस्क ऑफ कंटामिनेशन जो एपीआई में हाई रहता है, और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में मॉडरेट है, क्योंकि नॉन स्टराइल प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रोबियल जो का एक स्पेसिफिक लिमिट भी है उसमें अंदर होता है। इसके अलावा अलॉन्ग विथ एपीआई एक्सिपिएंट्स आर आल्सो यूज्ड, तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द क्लीनिंग इट इज कंसिडर्ड मॉडरेट। और इंजेक्टेबल के लिए वेरी हाई है। स्टेराइल और पैथोजन दोनों का जो लेवल है वो जीरो होना जरूरी। एनालिटिकल मेथड्स जैसे एचपीएलसी, जीसी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होते हैं। टैबलेट में एचपीएलसी, टीओसी, एचपीएलसी, लाल टेस्ट, पैरागन टेस्टिंग, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। माइक्रोबियल कंट्रोल्स मॉडरेट, लेकिन इंजेक्टेबल में स्ट्रिंजेंट होता है। मैको बेस्ड ऑन एपीआई एक्सट्रीम स्ट्रिंजेंट, स्टिक जीरो लेवल तक कंटामिनेशन होना जरूरी है। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी जो बैच टू बैच होना जरूरी है। और टैबलेट में बेस्ड ऑन एपीआई चेंजेस, प्रोडक्ट चेंज ओवर में हमको जरूरी है, या फिर कैंपेन बेसिस पे उसका भी वैलिडेशन किया जाता है। एवरी हाउ मेनी बैचेस के बाद हमको ये टाइप ऑफ क्लीनिंग, लाइक नो टाइप ए बी सी ऐसे डिसाइड किया जाता है। जैसे टाइप ए में सेम प्रोडक्ट के बैचेस अगर दो तीन बैच के बाद भी अगर हम क्लीनिंग कर सकते हैं चल जाता है,
तो कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू दिस इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडी एंड बेस्ड ऑन दैट जो टाइम कम भी आ सकता है, कंसिडरिंग द शिफ्ट चेंजेस एंड द टाइम इन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग, वो अगर ज़्यादा आते हैं तो उसमें टाइम डिसाइड किया जाता है। स्टेरिलिटी में ईच एवरी बैच के बाद इक्विपमेंट्स आर नीड टू बी क्लीन एंड स्टरलाइज बिफोर यूज, तो उसके लिए मोस्ट stringent practice and procedures are followed. So in this way, we have reviewed the requirement of uncleaned and cleaned, regulatory requirement and study to decide the timeline for the cleaning. Based on that, जो कि हम इवेलुएट कर सकते हैं कि क्लीन एंड अनक्लीन एपीआई टैबलेट्स और इंजेक्टेबल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, और स्टडी कैसे कंडक्ट किया जाता है, और अलग अलग मेथड्स और इवेल्यूशन के बारे में हमने समझा। So I hope you will help you in understanding the clean and unclean equipment whole time study. In this way, we conclude this chapter, and we'll meet again in next time. Thank you.